اور اب کچھ بات کریں سیاسی منظرنامے سے۔ وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں مذاکرات کے لیے ہماری آفر ٹیبل پر موجود ہے۔ جنرل فیض حمید کے حوالے سے کی گئی گفتگو پر قائم ہوں۔ محمود اچکزئی سے ملاقات ہوگی۔ محمود اچکزئی سے پوچھوں گا آپ فوج سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں یا نہیں۔ وہ ABN نیوز کے پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو کرتے ہوئے اظہار خیال کر رہے تھے۔ کل محمود خان اچکزئی صاحب سے پوچھوں گا ہاؤس میں کہ وہ اس سربراہی انہوں نے قبول کی ہے اور وہ فوج کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ جو پس منظر ہے ان کا سیاسی پس منظر ہے اس کے حساب سے تو مجھے یہ بات مشکل لگتی ہے۔ محمود خان اچکزئی صاحب کی سربراہی میں جو ہے وہ بات چیت جو ہے عمران خان صاحب فوج سے کرنا چاہتے ہیں، مجھے تو مشکل لگتا ہے۔ حکومت مذاکرات ان سے کرنا چاہے گی، ریچ آؤٹ کرے گی؟ ہم نے تو آلریڈی آفر رکھی ہوئی ہے، انہوں نے رسپانس دینا ہے۔ قومی اسمبلی رہنما تحریک انصاف زرتاج گل کہتی ہیں ہمیں عوام کے سوا کسی طاقت کی حمایت نہیں چاہیے۔ نواز شریف کبھی بھی عوام کی طاقت سے اقتدار میں نہیں آئے۔ زرتاج گل نے کہا کہ حکومت کے پاس ہے ہی کیا جو ہم ان سے مذاکرات کریں۔ بانی PTI نے جو آفر کی اسے قبول کرنے سے نون لیگ زیرو ہو جائے گی۔ نون لیگ والے کہتے ہیں ہم حکومت لینا نہیں چاہتے تھے، ہمیں حکومت دی گئی۔ وزیر دفاع کو معتبر نہیں سمجھتی، وہ ریحانہ ڈار کی سیٹ پر قابض ہیں۔ یہ خود اپنا کردار بتا رہے کہ یہ کس کے کندھوں کے اوپر یہاں پر بیٹھ کے آئے، عوام کی ووٹ کی طاقت سے نہیں آئے۔ کہتے ہیں ہماری تو آفر ٹیبل پہ ہے، ہم نے تو ان کو مذاکرات کی آفر کی ہوئی ہے، ٹیبل پہ ہے۔ کس نے کی ہوئی ہے؟ حکومت نے۔ نہیں تو ان کے پاس ہے کیا جو ہم ان کے ساتھ کریں؟ PMLN بار بار جبر ظلم اور فسطائیت کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ہمارے بیک پہ ادارے کھڑے ہیں، ادارے جب ان سے ڈس ایسوسیٹ ہوں گے تو ان کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ کریڈیبلٹی زیرو ہو جائے گا اور عوام کو پتہ چل جائے گا کہ ظلم جبر فسطائیت PMLN خود کرتی ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم تو حکومت لینا نہیں چاہتے، ہمیں تو حکومت دی گئی ہے۔ فارم 45 کے مطابق بھی ٹرائبیونل فیصلے حق کے اوپر فیصلے کر دے، فارم 45 کے مطابق تو میجورٹی تو ہمارے پاس ہے، تو ہماری حکومت بنتی ہے نا۔ ریحانہ ڈار صاحبہ سے سیالکوٹ میں ہار چکے ہیں تو ایک ہاری ہوئی سیٹ پہ آ کے ڈیفنس منسٹر بنا ہوا ہے۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا کہ فوج اور PTI میں بات چیت ہوئی تو کوئی پریشانی نہیں۔ PTI پاکستانی ریاست کے مفادات پر براہ راست حملہ آور ہے۔ ادارے جب سمجھیں گے PTI پر پابندی کا فیصلہ لے لیں گے۔ امریکی نشریاتی ادارے کو انٹرویو میں احسن اقبال نے کہا کہ PTI طرز سیاست کو کسی جمہوریت میں اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ملک اس وقت تناؤ کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ فوج نے دو ٹوک کہا کہ وہ سیاست سے علیحدہ رہنا چاہتے ہیں کہ PTI کے سوشل میڈیا کو بیرون ممالک سے، پاکستان کے دشمن ممالک سے ہینڈل کیا جا رہا ہے کہ PTI کی سیاست اس وقت پاکستانی ریاست کے مفادات پہ براہ راست حملہ آور ہے۔ پاکستان کی عدلیہ اپنے فیصلوں سے کوئی ایسا بحران پیدا کرتی ہے جس سے عدم استحکام ہو، بے یقینی ہو، تو وہ پاکستان کے حق میں تو نہیں ہوگا۔ انہیں قوم سے اور ہمارے اداروں سے معافی مانگنی چاہیے۔ ان کے ترجمان نے بہت واضح طور پہ دو ٹوک انداز میں کہا خود کو سیاست سے علیحدہ رکھنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے ہم تو انہیں یہ کہتے ہیں اگر وہ اپنا طرز عمل بدلیں اور وہ معافی مانگے قوم سے تو پھر یقیناً وہ قومی دھارے کے اندر آ سکتے ہیں۔ کوئی بھی تناؤ افورڈ نہیں کر سکتا۔ چیئرمین تحریک انصاف نے کہا ہے کہ مخصوص سیٹوں پر ہونے والے قانون سازی غیر آئینی ہے۔ ہم اس قانون سازی کے خلاف سپریم کورٹ میں جائیں گے۔ سپریم کورٹ کے فیصلوں کو نہ ماننا بھی غیر آئینی ہے۔ یہ اب دوسرا NRO لینا چاہتے ہیں جسے ہم نہیں مانیں گے۔ چیئرمین PTI کی جانب سے بیان جاری کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ مخصوص سیٹوں پر ہونے والی قانون سازی غیر آئینی ہے، ہم اسے ہرگز نہیں مانیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس قانون سازی کے خلاف سپریم کورٹ میں جائیں گے اور اپنی اپیل دائر کروائیں گے۔ سپریم کورٹ کے فیصلوں کو نہ ماننا بھی غیر آئینی کے زمرے میں آتا ہے۔ سپریم کورٹ پہلی ججمنٹیں دے چکی ہے کہ سپریم کورٹ کی آرڈر اور ججمنٹ کو آپ اس طریقے سے نلیفائی نہیں کر سکتے، یہ غیر آئینی کام ہے۔ انہوں نے پہلے NRO دیا تھا جس میں سے انہوں نے ججمنٹیں ختم کرا کے اپنے لیے فائدہ لیا تھا، اب یہ ایک سیکنڈ NRO اپنے آپ کو دینا چاہ رہے ہیں۔ میں عدلیہ سے اپیل کرتا ہوں، خاص کر چیف جسٹس سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ اس ڈیسیجن کے مائنارٹی جج ہی صحیح، لیکن آپ کی آئینی ذمہ داری ہے کہ اس اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا کہ جب تک عمر عطا بندیال تھے نواز شریف واپس نہیں آئے، جیسے چیف جسٹس تبدیل ہوئے تو نواز شریف واپس آ گئے۔ NRO والی حکومت عوام اور فوج کے درمیان تعصب بڑھا رہی ہے۔ 5 اگست کو سوابی میں بڑا جلسہ ہوگا۔ اسد قیصر نے کہا آئندہ 2 ہفتوں میں حکومت مخالف سیاسی جماعتوں کا گرینڈ اتحاد بنانے جا رہے ہیں، سب کو اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ فوج کے درمیان اور عوام کے درمیان مسلم لیگ نون یہ لوگ اپنا فاصلہ بڑھا رہے ہیں۔ وجہ
क्योंकि उन्होंने उनके मकासद जो है वो करप्शन है। उन्होंने अपने NRO लेके ये लोग आए हैं। नवाज शरीफ को देखे, जब तक जस्टिस बंजाल थे वो मुल्क में वापस नहीं आया। जिस वक्त चीफ जस्टिस चेंज हुए, काजी फैज ईसा आए तो वो मुल्क में आए, NRO लेके आए ना, अपने केसेस खत्म करके आए। जो अलायंसेस हम बना रहे हैं, इंशाल्लाह आइंदा 15 दिन के अंदर हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको एक बड़ा ग्रैंड अलायंस बनाएं और उसमें हम तमाम उन पॉलिटिकल पार्टीज को साथ मिलाएं जो पॉलिटिकल पार्टीज इस वक्त इस रजीम के खिलाफ आवाज़ उठा रही हैं, वो बलूचिस्तान के हों, वो सिंध के हों, वो खैबर पख्तूनख्वा के हों, वो पंजाब के हों, वहाँ जहाँ से हो। जो बिजली की कीमतों में इजाफा किया है किसी तौर पर मंजूर नहीं है। जो जमात इस्लामी ने इस हवाले से अपना धरना दिया हुआ है, हम उस धरने को सपोर्ट करते हैं और उनके मुतालिबात को भी सपोर्ट करते हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा अब्दुल कादिर पटेल ने कहा कि लगता है बानी PTI की फौज से मुज़ाकरात की ऑफर लिमिटेड मुद्दत के लिए है। अगर उन्होंने बात नहीं की तो फिर वो इन्हीं को बुरा भला बोलना शुरू कर देंगे। वो हमेशा ही कहते हैं कि जी फ़ौज मुदाखलत न करे और फिर बात भी उनको फ़ौज से करनी है। फिर एक बड़ा कल लतीफ़ा हुआ है कि ये उन्होंने कहा कि मैं मोहसिन नकवी से बात नहीं करूँगा, वो फ़ौज का आदमी है। असल में मेरे ख्याल में अभी तक भी थोड़े से दिमागी तवाज़ुन और शख्सियत के तवाज़ुन और सियासी तवाज़ुन, इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत है। अभी तक तहरीक इंसाफ फ़ैसला नहीं कर पाई कि उसे करना क्या है और करना क्या चाहिए। तो मैं समझता हूँ एक सियासी पार्टी को संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए कि एक तरफ तो आप कहें कि जी जमहूरी अमल होना चाहिए, हर चीज़ जो है वो फ़ौज के बग़ैर हो, फ़ौज को तो खुदा न खास्ता अल्लाह न करे गायब ही कर दो, फिर बात भी उन्हीं से करनी है। आगे बढ़ते हुए बात करें बिजली बिलों और महंगाई में कमी के लिए रावलपिंडी में जमात इस्लामी का धरना जारी है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर कहते हैं IPPs के धंधे से आवाम की जान छुड़वाएंगे, बिजली बिल कम करवाएंगे, तनख्वाहदारों पर टैक्सेस वापस कराएंगे, आवाम को अपने हुकूक दिलाने तक जिद्दोजहद जारी रखेंगे। पूरे मुल्क से लोग तहरीक में शामिल हो रखे, जागीरदारों और लुटेरों से आवाम को निजात दिला कर रहेंगे। ये जो जुल्म हो रहा है, ये जो ज्यादती हो रही है, हर तरफ लोगों के ऊपर बिजली के बम गिराए जा रहे हैं, तनख्वाहदारों की तनख्वाहें बड़े बड़े टैक्सों में काटी जा रही है। चंद मफाद परस्त हुकूमत के साथ मिलकर IPPs के जरिए से हमारे खून पसीने की कमाई को निचोड़ा है और खुद खुशहाल हुए हैं, अवाम को बदहाल किया है। ऐसी सारी सूरत हाल में जमात इस्लामी पूरे मुल्क में एक ताकत बनकर उभरी है। हम इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के अवाम को हक दिलवाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ से MQM के वफ़द की मुलाकात हुई। IPPs और बिजली के मामलात पर गौर किया गया। मुलाकात के बाद वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने मुस्तफ़ा कमाल के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि MQM ने इस्लाहात के हुकूमती एजेंडे में मुस्बत किरदार अदा किया। एहतजाज किसी मसले का हल नहीं, तनकीद बराए तनकीद नहीं बल्कि तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म मुआशी इस्लाहात के एजेंडे पर कारबंद है। डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन का अमल भी शुरू हो चुका। हुकूमत बिजली चोरी रोकने के लिए इक़दाम कर रही है और वह बिलों के मामलात में भी इस वक्त देखा जा रहा। हुकूमत का तरजीही एजेंडा मुआशी इस्लाहात है। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि बिजली के मसले पर हमने किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाया, अवाम के मसाइल को सामने रखा। हम 2600 अरब रुपए के कर्जदार हैं। ऐसी सूरत हाल में मुल्क आगे कैसे चल सकता है? इस्लाहात का हुकूमत का एजेंडा है, उसमें हमेशा इन्होंने जो है वो मुस्बत एक कंट्रीब्यूशन की है। वज़ीर आज़म का जो मुआशी इस्लाहात का एजेंडा है जिस पर वो कारबंद हैं, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज़ का जो एक्ट है उसमें तरमीम की गई और उस तरमीम के ज़रिए डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन का अमल जो है वो शुरू हो चुका है। बिजली चोरी को रोकने के लिए तमाम सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर जो इक़दाम कर रही है। जो IPPs का और बिजली के बहरान का मसला है मुल्क में, इसमें हमने किसी पार्टी के ऊपर, किसी भी साबका हुकूमत के ऊपर कोई हमने बैशिंग नहीं की, हमने कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया। पाकिस्तान के तमाम मसाइल को खुली आंखों से देखने की ज़रूरत है। पाकिस्तान इस वक्त एक बहुत ही चैलेंजिंग एनवायरनमेंट से गुजर रहा है। आइडियल सिचुएशन नहीं है। हम IMF के कर्जदार हैं, उसकी जो है वो लिमिटेशंस हैं। हमारे यहाँ इतने सारे मसाइल हैं। तो अगर MQM ने हमेशा से अपनी जिम्मेदारी निभाई और हमने मसाइल को एड्रेस करते हुए उसके पाकिस्तान ने IMF को 3 अरब 60 करोड़ डॉलर से ज़ायद सूद अदा कर दिया है। यह रकम पाकिस्तानी करेंसी में 1004 अरब रुपए से ज़ायद बनती है।
30 सालों में IMF से तकरीबन 29 अरब डॉलर कर्ज लिया गया और 21 अरब 72 करोड़ डॉलर से जायद कर्ज वापस किया गया। रिपोर्ट करेंगे शाहिद अजमल। पाकिस्तान ने 1958 से 2024 तक IMF से कर्ज प्रोग्राम साइन किए। IMF के 11 कर्ज प्रोग्राम सस्पेंड, एक कर्ज प्रोग्राम कैंसिल हुआ। 30 सालों में IMF से तकरीबन 29 अरब डॉलर कर्ज लिया गया और 21 अरब 72 करोड़ डॉलर से ज्यादा कर्ज वापस किया गया। दस्तावेज के मुताबिक साइन शुदा 4 कर्ज प्रोग्राम के 6 अरब 36 करोड़ SDR पाकिस्तान के जिम्मा वाजिबुल अदा है। 2013 से 2016 तक एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी कर्ज प्रोग्राम के 66 करोड़ SDR वाजिबुल अदा है। 2019 से 2022 IMF प्रोग्राम के 2 अरब 95 करोड़ SDR वाजिबुल अदा हैं। अप्रैल 2022 में रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट के 50 करोड़ 77 लाख SDR वापस करने हैं। दस्तावेज के मुताबिक 2023 से 2024 तक स्टैंड बाय अरेंजमेंट के 2 अरब 25 करोड़ SDR वाजिबुल अदा है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान IMF को 24 कर्ज प्रोग्राम्स पर 2 अरब 44 करोड़ SDR सूद अदा कर चुका। IMF के 2 अरब 44 करोड़ SDR तकरीबन 3.5 अरब डॉलर तक बनते हैं। सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी से डॉक्टर गौहर एजाज की क़यादत में फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के वफ़द की मुलाकात हुई है। सदर पाकिस्तान ने वफ़द को कारोबारी तबके के मसाइल के हल के लिए मुतल्लिक़ा हलकों के सामने मामला उठाने में ताउन का यकीन दिलाया। सदर पाकिस्तान से मुलाकात में ताजरों और 40 इलाकाई कारोबारी तंजीमों के अहदेदारान ने शिरकत की। इस मौका पर सदर पाकिस्तान आसिफ ज़रदारी ने कहा कि तवानाई की बढ़ती कीमतों से निमटने के लिए सबके लिए सूदमंद हल तलाश करना होगा। कैपेसिटी चार्जेस के मसले का काबिल अमल हल तैयार करने के लिए कारोबारी बरादरी एक कमेटी तश्कील दे। वफ़द के कायद गौहर एजाज ने कहा कि तवानाई की बढ़ती कीमतों से आवाम, सनतों, ज़राअत और बरामदात के शुबे पर भी बोझ पड़ रहा। तवानाई की कीमतों में कमी लाने के लिए तवानाई शुबे में इस्लाहात की अशद ज़रूरत है। मुआशी इस्तेकाम के एजेंडे पर अमल पैरा हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क मुआशी इस्तेकाम की जानिब गामज़न है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि IMF से छुटकारे के लिए इस्लाहात नागुज़ीर हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इसहाक डार ने कहा कि मायूसी फैलाने वाले कहते हैं कर्ज ले लिए, ये होगा वो होगा, कुछ नहीं होगा। इस्लामाबाद से शाहिद अजमल इस पर रिपोर्ट करेंगे। इस्लामाबाद में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान की नई इमारत की तामीर की इफ्तिताही तकरीब। वज़ीर ख़ज़ाना ने खिताब में कहा कि प्राइवेट सेक्टर को आगे आना होगा। मुआशी इस्लाहात से ही मुल्क तरक्की करेगा। मईशत से मुतल्लिक अच्छी खबरें आना शुरू हो गई हैं। फिच ने पाकिस्तान की रेटिंग को बेहतर किया है। हुकूमत का काम पॉलिसी फ्रेम वर्क देना है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने तकरीब से खिताब में कहा कि पाकिस्तान मुआशी तरक्की की राह पर गामजन है। मुआशी तरक्की के लिए इस्लाहात वक्त का तकाजा है। हम हर किस्म के चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं। मुआशी तरक्की के मौके मौजूद, सिर्फ रुकावटें दूर करने की जरूरत है। I believe this country and this economy has great resilience. We can do a lot, but road blocks जो है उसको आपको remove करना होगा. No matter what, in the national interest, just bulldoze. चेयरमैन SECP आकिफ सईद का कहना था कि SECP में रेगुलेशन को जदीद तकाजों से हम आहंग किया जा रहा है। महफूज सरमायाकारी के लिए ऐसे इक़दाम ले रहे हैं जो मैशत की तरक्की का ज़ामिन हैं। खबर पख्तूनख्वा कौमी जरगे का IPPs और महंगी बिजली के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट के सामने एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहिरीन ने सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। मजीद जानते हैं इमरान खान की इस रिपोर्ट में। मुजाहिरीन का कहना है कि बिजली की लोड शेडिंग और टैक्सेस का सिलसिला जारी है। इस हवाले से हाई कोर्ट में IPPs के खिलाफ दरख्वास्त भी दायर की हुई है जो 8 माह से इल्तवा का शिकार है। आज तारीख का दिन था लेकिन लिस्ट में कोई नई तारीख नहीं है। गुज़श्ता 8 महीनों से तो तारीख नहीं मिल रहा था और जब आज तारीख मिला है तो उसका कोई आउटपुट ही नहीं है। वहाँ पे न लिस्ट में है न कास्ट लिस्ट में है। तो हमारा ये इशू तो अवामी इशू है, ये हमारा ज़ाती इशू थोड़ा ही था। ये सारे पाकिस्तान की अवाम का इशू तो चोरों और करप्ट लुटेरों के खिलाफ था ना। IPPs के नाम पर मुल्क को लूटा जा रहा है। अवाम के हक पर सरासर डाका है। बिजली के बिलों में बेतहाशा इजाफे से शहरियों का जीना मुहाल हो गया है। शहरी अपने कीमती सामान फरोख्त करके बिजली के बिल्स अदा करने पर मजबूर हो गए हैं। अवाम अपने हुकूक के लिए निकल चुके हैं और जो भी हमारे रास्ते में आएंगे तो हम उनसे बदला लेंगे
और गरीब आवाम का हक लेंगे। ऐसा IPPs के लिए निकले हैं कि IPPs के खिलाफ जो आवाम के हक पर डाका डाला जा रहा है, तो हम कहते हैं कि ये फौरी बंद किया जाए। शहरियों का कहना है कि बिजली के बिल्स में जो टैक्स आते हैं इनको अदा हम करते हैं और अय्याशियां हुक्मरान कर रहे हैं। आज हम अपने हक के लिए निकले हैं और अदलिया से इंसाफ की तवक्को रखते हैं। अगर मुतालबात तस्लीम ना किए गए तो एहतजाज जारी रहेगा। आगे बढ़ते हुए बात करें, पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी के चेयरमैन ने कहा कि VPN को भी ब्लॉक कर सकते हैं, लेकिन इस पर सारा बिजनेस चलता है। सेनेट की कायम कमेटी को ब्रीफिंग में चेयरमैन PTA ने बता दिया कि VPN की वाइट लिस्टिंग कर रखे गए। सिर्फ मखसूस VPN पाकिस्तान में चलेंगे, बाकी नहीं चलेंगे। VPN के बावजूद पाकिस्तान में X के सार्फिन 70% कम हुए, सिर्फ 30% ही VPN पर इस्तेमाल कर रखे गए। हमें जिस दिन हुकूमत कहेगी हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X खोल देंगे। चेयरमैन के मुताबिक X की इंतजामिया ने हमारी शिकायत पर गुज़श्ता 3 माह में सिर्फ 7% अमल किया है। कौमी रियासत, इस्लाम और जमहूरियत के उन्वान से इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इंडोनेशिया के सफ़ीर और चेयरमैन सलामती इस्लामी नज़रियाती कौंसल समेत दीगर मुकर्ररीन ने खिताब किया। कहते हैं रियासत मदीना का मॉडल तमाम मुसलमान ममालिक की तरक्की का वाहिद हल है। फलाही रियासत का तसव्वुर सबसे पहले दीन इस्लाम ने पेश किया। मुस्लिम इंस्टीट्यूट और इंडोनेशिया के सफारत खाने के ताउन से इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इंडोनेशिया के पाकिस्तान में सफ़ीर रहमत के हिंद्रियाता और साबिक वफाकी वज़ीर कानून अहमद बिलाल सूफ़ी, एडहॉक मेंबर शरीयत अपैलेट बेंच सुप्रीम कोर्ट डॉक्टर किबला अयाज और दीगर मुकर्ररीन ने खिताब करते हुए कहा कि इस्लामी रियासत किसी खास तर्ज हुकूमत के बजाय फलाही रियासत पर जोर देती है। इस्लाम जमहूरियत और तरक्की के लिए ख़तरा नहीं। इस्लाम में जमहूरियत 1400 साल पहले ही राइज थी। इस्लाम हुक्मरानों को इस्लाम मुखालिफ पॉलिसियाँ तश्कील देने की इजाज़त नहीं देता है। इस्लाम हुक्मरानी के लिए मुशावरत की बात करता है, जिसे शूरा कहा जाता है, लेकिन मगरब की इस्लाहात एक ख़ास तासुब पर मबनी है, जहाँ फर्स्ट वर्ल्ड और थर्ड वर्ल्ड तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर के लिए कवानीन मुख्तलिफ हैं। तमाम कवानीन इससे मुतालिक हमें रहनुमाई कुरान पाक से मिल जाती है। हमें जिद्दत के साथ अपनी रवायात को भी अपनाना होगा। इंडस मोटर कंपनी ने टोयोटा के ताउन से पाकिस्तान में तैयार करदा गाड़ियों की बरामद के प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया है। इंडस मोटर कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अली असगर जमाली कहते हैं, मेक इन पाकिस्तान ख्वाब का बैनुल-अक़वामी सरहदों को अबूर करना ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि पाकिस्तान के लिए भी एक तारीखी लम्हा है। वज़ीर सनअत व पैदावार राना तनवीर हुसैन बोले, हम ऑटो इंडस्ट्री की हर मुमकिन तरीके से मदद करने के लिए पुरज़्म हैं। इंडस मोटर कंपनी ने कराची में मुनक़िदा तकरीब में गाड़ियों और पुर्ज़ाजात की बरामदात के प्रोग्राम का ऐलान किया। इंडस मोटर कंपनी के तैयार करदा गाड़ियों और पुर्ज़ाजात बहरहाल वहाँ पर मौजूद बहरुल काहिल और इससे मुतल्लिक़ा ममालिक को बरामद की जाएंगी। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने तकरीब से खिताब में कहा कि यह बात हमारे लिए काबिल फ़ख्र है कि पाकिस्तान की मुमताज़ कंपनी में से एक इंडस मोटर बरामदात में अपना किरदार मौसर अंदाज से अदा कर रही है। एग्जीक्यूटिव नायब सदर टोयोटा मोटर एशिया कॉसनौरी एक्टोची ने कहा कि IMMC के साथ शराकतदारी हमारे लिए इंतहाई सूदमंद रही। इंडस मोटर्स के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अली असगर ने कहा कि मुल्क की सड़कों से बैनुल-अक़वामी शाहराहों तक इंडस मोटर मेक इन पाकिस्तान टोयोटा गाड़ियां बरामद कर रहा। यकीन है हमारी मसनूआत को अच्छी पज़ीराई हासिल होगी। इंडस मोटर्स टोयोटा के इश्तराक से 4.5 लाख नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम कर रही है। कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के डिप्टी डायरेक्टर RRG मिर्जा इखलाक बेग के खिलाफ मजाज अथॉरिटी की मंजूरी के बाद इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। तर्जमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक डिप्टी डायरेक्टर RRG मिर्जा इखलाक बेग के खिलाफ कार्रवाई के लिए काफ़ी वजूहात मौजूद हैं। इनके खिलाफ कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन एक्ट के सेक्शन के तहत फौरी तौर पर इंक्वायरी शुरू की जा रही है। डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर HRDA एंड मोहम्मद साकिब को बतौर इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर किया गया ताकि मिर्जा इखलाक बेग के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। चेयरमैन CDA से डेनमार्क के पाकिस्तान में सफ़ीर की मुलाकात हुई है। मोहम्मद अली रंधावा ने कहा कि इस्लामाबाद को जदीद शहर बनाने के लिए मुतादिद नए मनसूबे शुरू किए जा रहे। चेयरमैन CDA ने कहा कि इदारे को मुतहर्रिक करने के लिए मुतादिद इक़दाम उठाए गए हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से डेनमार्क के तजुर्बात से इस्तेफादा किया जाएगा। डेनमार्क के सफ़ीर जैकब एल लिनाफ ने कहा कि तमाम चेयरमैन CDA की तरफ से उठाए गए माहौल दोस्त इक़दाम काबिल सत्ताइश हैं। माहौलाती तब्दीली फंड और मार्गला हिल्स फंड जैसे इक़दाम इस्लामाबाद के कुदरती माहौल के तहफ़्फ़ुज़ में अहम किरदार अदा करेंगे। मार्गला हिल्स शजरकारी मुहिम में भी भरपूर हिस्सा लिया जाएगा।
ہیسکو ریجن میں بجلی چوروں اور نادہندگان کے خلاف اینٹی تھیفٹ ریکوری مہم مزید تیز کر دی گئی۔ ہیسکو چیف نے کہا کہ بجلی چوری کا خاتمہ اور واجبات کی 100% وصولی یقینی بنائی جائے۔ ہیسکو بجلی بلوں کی ادائیگی کے بغیر اپنا نظام نہیں چلا سکتا۔ ہیسکو چیف نے سرکل نواب شاہ کے تمام افسران سے میٹنگ میں ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا کہ بجلی چوری کا مکمل خاتمہ کریں۔ چوکی دارہ سسٹم کے تحت ہر آفیسر اور ملازم اپنے علاقے میں بہتر مانیٹرنگ اور صارف دوست رویے کے تحت بجلی کی بہتر ترسیل کو یقینی بنائے۔ بجلی چوری میں ملوث کسی فرد کو معاف نہیں کر سکتے، چاہے وہ ہیسکو ملازم ہی کیوں نہ ہو۔ ترجمان کے مطابق آپریشن سرکل ہیسکو نواب شاہ کے صارفین پر 49 ارب 73 کروڑ سے زائد کے واجبات ہیں۔ امریکہ کی جانب سے نوجوان گریجویٹس کو توانائی کے شعبہ میں کیریئر کے مواقع فراہم کرنے کے لیے جاب فیئر کا انعقاد کیا گیا۔ یو ایس ایڈ کے تعاون سے ایمپاور آل انرجی پروگرام کے دوسرے گروپ کے 24 کامیاب گریجویٹس اسناد تقسیم کی گئیں۔ یو ایس ایڈ کے زیر اہتمام گریجویٹس کو کیریئر کے موقع تلاش کرنے کے لیے قومی بین الاقوامی کمپنیز کے ساتھ نیٹ ورکنگ کے کیریئر ایکسپو کا انعقاد اسلام آباد میں کیا گیا۔ پروگرام کے دوران پہلے گروپ کے 20 انرجی گریجویٹس میں سے 60% سے زائد نے سرکاری اور نجی توانائی کے شعبوں میں ملازمتوں اور انٹرنشپس حاصل کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے امریکہ کے قائم مقام مشن ڈائریکٹر جیمز فلیمنگ نے کہا کہ دنیا بھر میں موسمیاتی بحران سے نمٹنے کے لیے ہمیں ہر ایک کی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کی ضرورت ہے۔ جیمز فلیمنگ نے اسلام آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیئرمین ڈاکٹر طاہر مسعود کے ہمراہ انجینئرنگ گریجویٹس میں اسناد بھی تقسیم کی۔ اور نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ABN نیوز۔